तो आज की इस वीडियो में हम एक एजुकेशन के लिए वॉइस एजेंट बनाएंगे जो कि लीड क्वालिफाई करता है और आउटबाउंड कॉल करेगा स्टूडेंट को, उनको लीड क्वालिफाई करेगा। मान लो किसी ने एक, हमारे पास एक्सेल सीट का लीड डाटा है जिसमें हम एक वेरिएबल रखे हुए हैं जिससे उसका नेम है, उसकी ईमेल आईडी, उसकी लोकेशन है और उसकी इंटरेस्टेड कोर्स है। उसकी इंटरेस्टेड कोर्स है, एजुकेशन लेवल क्या है, तो उससे हम एक अपनी कोर्स को ऑफर करने के लिए, या जैसे काउंसलर कॉल करता है आउटबाउंड लीड करने के लिए, लीड क्वालिफाई करने के लिए स्टूडेंट को, तो ये कॉलिंग एजेंट उसको कॉल करेगा। जो भी हमारे पास लीड रहेगी स्टूडेंट की, उसकी नेम, उसकी नंबर, उसकी इंटरेस्टेड कोर्स, उनको कॉल करके लीड क्वालिफाई करेगा, उनको कोर्स ऑफर करेगा और काउंसलिंग सेशन के लिए बुक करेगा ये कॉलिंग एजेंट। तो चलो पहले इससे पहले डेमो दिखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको, तो चलो इससे पहले हम डेमो देखते हैं, फिर इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। और ये कॉल करता है, फिर उसके बाद उनको एक जो भी डेट डाटा होती है उनकी, मतलब अपार्टमेंट बुकिंग की है, इसमें एक्सेल सीट में ऐड करता है। और दूसरी जो होती है वो जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका वो जवाब लेता है। जैसे कि किस लोके जैसे कि लर्निंग मोड क्या है, लोकेशन क्या है, स्टूडेंट इंटरेस्टेड कोर्स क्या है, ये सारी ऐड करता है सेकंड सीट में। और फर्स्ट सीट में वो अपार्टमेंट बुकिंग की डिटेल रखता है और ईमेल कंफर्म, और ईमेल भी सेंड कर देता है कि अपार्टमेंट बुक हो चुकी है। और ये ईमेल का फॉलोअप है और ये इसका है, एक्सेल सीट में डाटा ऐड करने का है। तो पहले चलो टेस्ट करते हैं इसको। जैसे मान लो कि नेम, यूज़र नेम पुनीत है स्टूडेंट का, तो ईमेल आईडी अगर कोई सबमिट करता है या नहीं करता है, अगर मान लो सबमिट किया है वेबसाइट पे जाके कहीं भी, लीड हमारे पास है, तो ईमेल यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऑप्शनल भी है। मान लो कि मेरा एरिया है दिल्ली और मैंने वेब डेवलपमेंट कोर्स के लिए किया है, और करियर गोल यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, करियर गोल वो पूछेगा हमसे। और बाकी इसको हम सेव कर लेते हैं क्योंकि हम एक डेमो के लिए टेस्ट कर रहे हैं। तो चलो पहले टेस्ट करते हैं। Hello, am I speaking with Puneet? यस। This is Priya from EduPath Academy. Thank you for showing interest in our career programs. Do you have a minute to talk about your course interest? यस श्योर। Thank you, Puneet. You had shown interest in the web development program and you are based in Delhi. Is that correct? या करेक्ट। Great, thank you for confirming. I will ask a few short questions so we can match you with the right counselor. Is that okay? ओके। Thank you. What is your current education level? आई हैव completed my 12th। Thank you for sharing that, Puneet. Are you planning to start learning in the next 1 to 3 months? Yes, I want to start learn within Thank you. next What month. is perfect, Puneet? What is your main goal for joining this course? Career switch, job placement, or skill growth? My main goal is to get job placement. Thank you for sharing that. Would you prefer online or hybrid learning mode? I prefer online. Thank you, Puneet. You are currently based in Delhi, right? Yes. Thank you for confirming. You are interested in our web development program, right? Yes. Thank you. What kind of career outcome are you expecting after completing this course? I want to get job in this field. It seems like a good fit for you, Puneet. Let us schedule your free counseling session. Just confirming. Is punitgupta5733 at gmail.com the best email to send your appointment details? No, my email ID is puneetkumar57. Sorry. My email ID is puneetkumar98355 Thank you, Puneet. Just to confirm, your email is puneetkumar98355 at gmail.com. Is that correct? Yeah, it's correct, but PUNIT. Thank you for Thank you for clarifying, Puneet. Just to confirm, your email is punitkumar98355 at gmail.com. Is that correct? No, 98355. Okay, correct. Thank you, Puneet. Your email is punitkumar98355 at gmail.com. Now, please tell me your preferred date and time for the counseling session. I prefer on 21 November at 4 p.m.
Perfect. Your meeting is scheduled for 21st November at 4:00 p.m. You will get a confirmation email shortly. Thank you for your time, Puneet. Have a great day. थैंक्स प्रिया, थैंक। You're most welcome, Puneet. तो देखो मैंने जैसे ही कंफर्म किया तो मेरे लिए काउंसलिंग सेशन की शेड्यूल की मेल आ चुकी है। देखो मैं पढ़ता हूँ इसको। हाय पुनीत, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम टू स्पीकिंग मी टुडे एंजॉय। तो जैसे मैंने 21 नवंबर को 4 बजे का बुक किया तो 4 बजे का टाइम आ चुका है। तो इसने सब भेज दिया और ये लिंक भी भेज दी, नंबर भी भेज दिया, प्रिया उसके नाम से। अब ये इतना पर्सनलाइज मेल भी जा चुका है, तो ये हमने ऑटोमेशन में सेट कर रखा है। और दूसरी तरफ हम एक्सेल शीट में देखेंगे तो हमारे नाम से और हमारे ईमेल आईडी के, इसको एक्सपेंड करते हैं एक सेकेंड, हमारी ईमेल आईडी और जिस दिन मैंने बुक किया है कितने बजे किया है वो आ चुकी है। और हमारे जो भी हमने, जैसे मैंने जॉब दी कि 12th कंप्लीट है, नेक्स्ट मंथ जॉब प्लेसमेंट, करियर गोल क्या है, ऑनलाइन, दिल्ली, वेब डेवलपमेंट, तो ये सारी इसमें आ चुकी है। तो अब ऑटोमेशन को समझते हैं कि ऑटोमेशन कैसे काम किया। ये जो ऑटोमेशन है जब भी वहाँ से ट्रिगर होती है वेब बुक से, ये गूगल शीट में अपॉइंटमेंट डिटेल ऐड करता है, फिर ये एजेंट उसको पर्सनलाइज मेल लिखता है, मेल सेंड होती है, फिर रिस्पॉन्ड करता है। सेकेंड ऑटोमेशन में क्या होता है कि ये यहाँ से फिक्स करता है जो भी लीड क्वालिफाइड डाटा थी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 12th कंप्लीट, और इसको एक्सेल शीट में ऐड करता है। तो अब हम इसको देखते हैं प्रॉम्प्ट को। प्रॉम्प्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो और अपने आप से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक सैम्पल, एक एग्जांपल लेके बनाया है कि ऐसा सिचुएशन हो तो ऐसा वॉइस एजेंट बना सकते हैं। और ये सिंगल प्रॉम्प्ट एजेंट है, तो कुछ नहीं, आप, मैं ये सारा डिटेल और जो भी जेसन फाइल है मैं आपको दे दूंगा, आपको बस कॉपी पेस्ट करना होगा और कस्टमाइज़ करना होगा अपने अकॉर्डिंग। तो चलो फिर से बनाते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए हमें रिटेल एआई पे जाना होगा। रिटेल एआई पे जाओगे, जैसे मेरा लॉगिन है तो ये खुल जाता है। रीड करने के बाद यहाँ पे क्रिएट एजेंट वॉइस एजेंट पे जाना है, यहाँ पे जाना है सिंगल प्रॉम्प्ट एजेंट, क्रिएट करो। तो देखो जैसे कि ये हो गया। अब ये जो होता है आपको प्रॉम्प्टिंग करनी होती है आपकी कंपनी के हिसाब से। तो जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट रखा है तो आपको हम ये प्रॉम्प्ट दे देंगे। आपको ये कॉपी कर लिया मैंने अभी प्रॉम्प्ट नहीं करना हो कि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसको हमने पेस्ट कर दिया कॉपी करके यहाँ से। प्रॉम्प्ट को समझते हैं और यहाँ से सेव कर देंगे। और ये ऑप्शन से क्या होता है कि एआई पहले बोलेगा, अगर कॉल करता है तो एआई को पहले बोलना है, तो ये सेटिंग्स होती है। तो जैसे आइडेंटिटी एंड पर्पस क्या है, यू आर प्रिया एआई ड्राइविंग वॉइस एजेंट फॉर ईडू पाथ एकेडमी, तुम एक एक्सपीरियंस काउंसलर हो, 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऐसे कुछ। तो ये गाइड करते हैं स्टूडेंट को, क्वालिफाई करते हैं इंटरेस्टेड है ना। तो ये हमने वेरिएबल किया है कि हम इसको वेरिएबल देने वाले हैं नेम, ईमेल, लोकेशन, इंटरेस्टेड कोर्स, एजुकेशन लेवल। चाहो तो तुमको जो भी आपको मिल रहा है वेरिएबल, आप से लोकेशन और इंटरेस्टेड कोर्स भी डाल सकते हो आपके पास जो है। तो मेरे पास 4 वेरिएबल है तो मैंने 4 रख लिया। तो ये एक पर्सनलाइज उसको कॉल करेगा कि हाय पुनीत, जो भी मैंने मान लो कि नेम डाल दिया, जैसे यहाँ से मैंने नेम डाला ना टेस्ट के लिए, तो पुनीत नाम से बोलेगी ये एजेंट। फिर इसके बाद ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा, जैसे कि स्टूडेंट क्वालिफाई काउंसलिंग, मतलब उसका लोकेशन अगर इंडिया में रहेगा तभी उसको क्वालिफाई काउंसलिंग सेशन बुक करना है। तो एजुकेशन लेवल 2 है और इंटरेस्टेड कोर्स मैच एडू पाथ कोर्स लिस्ट में, मतलब इसके कोर्स लिस्ट में हम मैच करना चाहिए उसका इंटरेस्टेड कोर्स। तो इसमें क्या होता है कि हम नॉलेज बेस ऐड कर देते हैं, जो भी एकेडमी है उसकी कंपनी है, तो पीडीएफ के फॉर्मेट में या आर्टिकल या वेबसाइट के फॉर्मेट में, तो वो फैक्स कर लेता है वहाँ से। एजुकेशन लेवल 12 ग्रेड होनी चाहिए और उसकी एबोव होनी चाहिए। तो करियर गोल, प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, तो ऐसे हमने एक रिक्वायरमेंट रख रखा है, इसको ट्रेन कर रखा है वॉइस एजेंट को कि ऐसा रहेगा तभी इससे बात करना है, क्वालिफाई करना है। और सबसे मेन चीज़ जो होती है वॉइस एजेंट में ना, ये कोई नहीं बताता कि अगर हम डैश लगाते हैं ना तो वो कोई भी फैक्स, मतलब वो ना कोई भी वर्ड को ना सही प्रोनाउंसिएशन करता है, मतलब सही से बोलता है कोई भी वर्ड को। जैसे gmail.com बोलना है, website.com बोलना है, तो ये ना ये प्रॉम्प्ट में कोई नहीं लिखता है ऐसे। ये हम आपको बता रहे हैं, ये सब कोई भी अगर कोई भी वॉइस एजेंट बनाता है तो ये काम नहीं करता है। अगर आप ये कर दोगे तो वो बहुत सही से कोई भी gmail.com नंबर है उसको अच्छे से बोल पाता है ये, ना कि वो ऐसे रिपीट कर दे, एक ही लाइन में बोल दे, एक वर्ड में मिला के बोल दे। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है कि 1 PM को कैसे बोलना है। यहाँ पे शायद गलती है, हाँ ठीक है, टाइम को 1 PM बोलना है, 33 PM बोलना है ऐसे। और ये वेरिएबल है, जैसे कि ये मैंने वो लंदन के लिए बना रखा था तो वही अभी सेव है, तो इसको हम इंडिया के लिए कर सकते हैं। और हाँ, सबसे मेन जो फॉलो है बात करने का, हेलो आई एम स्पीकिंग विथ नेम, मतलब पुनीत नेम है या फिर सौरभ नेम है, जो भी है, तो यहाँ पे वो ऐसे फैक्स करके बोलेगा।
तो अगर यस बोलता है पर्सन तो दिस इज़ प्रिया फ्रॉम एडूपाथ एकेडमी, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट और करीब। ये तुम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ये भी जितने भी सारी चीज़ें हैं। फिर पर्सनलाइज फॉर्म कन्फर्मेशन के लिए उसका इंटरेस्टेड कोर्स क्या है, तो ये ऐसे बोलेगा। फिर लोकेशन क्या है, करेक्ट, वो पूछेगा करेक्ट है या, मतलब वो उससे पर यस और नो में जवाब लेना चाह रहा है। फिर उसके बाद परमिशन पूछेगा, उससे एक लीड क्वालिफाई के लिए क्वेश्चन पूछेगा, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, वो कब प्लानिंग कर रहा है पढ़ने की, करियर गोल क्या है, लर्निंग मोड क्या चाहता है, लोकेशन कन्फर्मेशन। अगर ये सारी कंफर्म हो जाती है, लीड क्वालिफाई हो जाती है, तो उसके काउंसलिंग सेशन बुक करने के लिए वो आगे जाता है। तो अब ये देखो, ये जो एक्सेल सीट में पहला डाटा जो दिख रहा है एजुकेशन लेवल, इसको हमको कैसे ले जाना है, इसको हमें कैसे ले जाना है एक्सेल सीट में। तो ऐसे वेरिएबल डिफाइन करने होते हैं अंडरस्कोर लगा के। नेम ले जाने हैं तो नेम को फ़ोन, एजुकेशन लेवल, करियर गोल, तो ये देख सकते हो, है ना। नेम, फ़ोन नंबर, सॉरी फ़ोन नंबर की जगह ईमेल चला गया है, ये गलती से शायद लग रहा है। एजुकेशन लेवल, स्टार्ट टाइमलाइन, फ़ोन नंबर तो वो आ जाएगी एक्सेल सीट में रहती है कहीं ना कहीं लीड में। नेम ईमेल से पता चल जाता है, कहीं ना कहीं एक कॉन्टैक्ट नंबर होनी चाहिए। तो ये सारी डाटा है, तो ये फिक्स करता है। और ये फंक्शन यहाँ पे लगाना होता है, यहाँ पे इन कॉल का फंक्शन लगाने मतलब वो कॉल इंड हो जाएगी जब भी बात ख़त्म होगी तो। और ये कुछ और भी क्राइटेरिया लगा रखा है कि कैसे रिस्पॉन्स करना है। तो जब भी ये क्राइटेरिया मेट हो जाती है, लीड क्वालिफाई हो जाता है, तो वो बुकिंग की ओर ले जाता है, काउंसलिंग सेशन बुक करता है, शेड्यूलिंग काउंसलिंग। अगर वो उससे टाइम पूछता है, अगर ईमेल करेक्ट है या नहीं है उसे कंफर्म करेगा, कंफर्म करने के बाद उसको अपॉइंटमेंट डिटेल सेंड करता है। ये सारी चीज़ें हैं और यही सारी प्रॉम्प्टिंग है। आप ऐसे चाहो तो अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये यहाँ है ये LLM मॉडल, आप अपने हिसाब से LLM मॉडल कर सकते हो। तो बेस्ट रहता है कि 4.0 मिनी करो, और ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका और सही भी है। यहाँ से वॉइस मॉडल चूज़ कर सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ मोनिका की आवाज़, जो कि बेस्ट है इंडिया के लिए, यहाँ से यूज कर सकते हो। और इंग्लिश मल्टी लैंग्वेज करो तो ज़्यादा बेहतर है, और यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। Hello, am I speaking with you? यस, मतलब ये काम कर रहा है। यू इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने कुछ वेरिएबल नहीं, इसमें नेम नहीं रखा है। अगर हम नेम यहाँ रख दे तो ये बोलेगा मेरा नाम, जैसे अभी रखता हूँ ना, देखना। Hello, am I speaking with Puneet? यस, देखा, बोला ना अब। This is Priya. तो ठीक है, अब इसको हम N8 में कैसे इंटीग्रेट करते हैं तो बताता हूँ। तो तुम्हें सबसे पहले मैं ये जेसन फाइल दोनों देने वाला हूँ। तुम्हें इसमें इसको डाउनलोड करके जेसन फाइल देना हो, तुम्हें अपने N8 में इंपोर्ट करना होगा, या फिर तुम बना सकते हो एक्सरास से। जैसे मैं इसको कॉपी करके यहाँ करता हूँ फिर से, ठीक है। तुम्हें N8 में जाना है, तो तुम्हें N8 में इसको करने के लिए सबसे पहले N8 में जाना है। N8 में जाओगे तो यहाँ पे फिर से तुमको ओवरफ्लो बिल्ड करना है क्लास से। मैं तुम्हें ये जो फाइल दूंगा, जेसन फाइल, दोनों नाम लिख से, तुमको यहाँ से जाके इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करना होगा ऐसे कहीं से जाके, मान लो कि ये फाइल है, इसको जैसे ये फाइल है, जेसन फाइल है, तो इसको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के बाद ऐसे ये खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको बस अपने हिसाब से इसको चेंज करना होगा तुम्हें। बाद अब यहाँ पे हमें जो ये डेटा है ना, इसको हमें एक्सेल सीट में ले जाने के लिए यहाँ पे हमें फंक्शन डिफाइन करना होता है। मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ देख रहे हो मैंने दो फंक्शन, एक गूगल सीट टूल का, एक अपॉइंटमेंट बुकिंग का। तो यहाँ से जब भी हम करते हैं, जैसे यहाँ देखो गूगल सीट टूल ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर रखा है कि कैसे क्या जब आंसर ऑल कलेक्टेड हो जाए तो फिर करना है। ये ऐसे डिफाइन करना होता है। चलो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट पहले लीड क्वालिफाई का डाटा ऐड करना है। ये वेरिएबल इसलिए कर रखा है कि इस क्वेश्चन का वेरिएबल ये है कि स्टार्ट टाइम लिंक होना, इसको शॉर्ट में रखना होता है क्योंकि वेरिएबल शॉर्ट में डिफाइन होता है और यही फिक्स करता है। और ये लास्ट में देखोगे तो ये जब भी कलेक्ट कर लेगा एजुकेशन लेवल, स्टार्ट टाइम लाइक, करियर प्लान, जो भी है गोल है, तो इसको गूगल सीट टूल में, मतलब ये फंक्शन हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, तो उसमें ये ऐड करेगा। कस्टम फंक्शन में जाएंगे और इसको गूगल सीट टूल लिखेंगे, गूगल सीट टूल, सॉरी गूगल सीट टूल ऐसे। और ये जो डिस्क्रिप्शन है अच्छे से जितना लिखो, एक दो लाइन में लिखना होता है, तो अभी के लिए हम इसको ही लिख देते हैं, जो है इसको ही कॉपी करके लिख देते हैं।
इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये जो यूआरएल होता है पोस्ट, ये इनएटेन से मिलता है। ये जो यूआरएल है ना, स्टार्टिंग में पहले टेस्ट यूआरएल रखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना हम इसको अभी इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि ये मेरा एक ओवरफ्लो पहले से एक्टिव है, तो इसको पहले डिलीट करते हैं, एक नया वेब बुक लेते हैं। तो यहाँ जो मेथड होगा पोस्ट होगा, क्योंकि डाटा को लेना है तो पोस्ट होगा। और ये जब होगा प्रोडक्शन वाले नहीं लेंगे, टेस्ट वाले लेंगे, पहले टेस्ट करेंगे इसको। यहाँ जाके ऐड करोगे, ठीक है। और इसके बाद एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे। यहाँ है फॉर्म और जेसन से भी कर सकते हो, लेकिन प्रेफर करो कि फॉर्म से करो। जैसे फॉर्म से हम पहला जो रख दिए, ये जो फर्स्ट है ना, पहले नेम लेना है, नेम ले लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिख दो नेम है तो नेम लिख दो उसको, और लिख सकते हो अलग से और भी डिटेल में लिख सकते हो, लेकिन शॉर्ट में लिखो कि समझ जाए LLM मॉडल। फ़ोन नंबर क्या है, फ़ोन नंबर लिख दिया है। और जो थर्ड है स्टार्ट टाइमलाइन। ठीक है। और ऐसे ही करके सारा ऐड कर लोगे। स्टार्ट टाइमलाइन ऐड कर दिए। करियर गोल ऐड कर दिए। फिर इसके बाद लर्निंग मोड क्या है, स्टूडेंट लोकेशन, फिर उसके बाद स्टूडेंट का इंटरेस्टेड कोर्स क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे वेरिएबल हमें डिफ़ाइन करनी होती है। करियर इंटेट क्या है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख सकते हो। और इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दो, फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। फिर यहाँ स्टार्ट टाइमलाइन है, सॉरी यहाँ टाइमलाइन लिख देते हैं डायरेक्ट। इसको चाहो तो कर सकते हो, वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम शॉर्ट में करते हैं। करियर, सॉरी, मोड, लोकेशन, कोर्स, इंटेंट, ऐसे करके हम यहाँ से सेव कर लेंगे। ठीक है। सॉरी कुछ गलत हो रही है यहाँ पे शायद। क्या गलत हो रही है? इरन टूल गूगल शीट कोट इन वाले प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी की मस्ट बी कंटेंट अंडरस्कोर एंड डैश विथ मैक्सिमम लेंथ ऑफ 64। अच्छा, फिर से ऐड करते हैं इसको नेम पर। स्टूडेंट नेम, कभी कभी वो गलत होती है तो उसको ऐसे हो जाती है। तो अब यहाँ से टेस्ट करेंगे और फिर यहाँ से ओवरफ्लो ऐसे रन करेंगे। यहाँ से इसको ऐसे ऐड कर देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम लिसन करेंगे इसको तो, और यहाँ से टेस्ट करेंगे तभी वो डाटा यहाँ से लेगा। तो चैट से स्टार्ट करते हैं। ओह सॉरी, इसको ना फिर से करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं किया। फिर से करते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे नेम रख लेते हैं अपना, जो भी नेम है। ईमेल आईडी छोड़ देते हैं, ईमेल आईडी रख सकते हैं वैसे, puneet@gmail.com। लोकेशन मान लो मैंने दिल्ली सबमिट किया है। इंटरेस्ट कोर्स मेरा वेब है, वेब डेवलपमेंट है। ये सब छोड़ देते हैं, सेव करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। और यहाँ चेक करते हैं स्क्रीन, इसको फिर से स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। अब करते हैं लिसन। अब यहाँ से फिक्स करेगा। अब इसको हम देते हैं आंसर। यस, डू हैव ए मिनट टू टॉक? यस, करेक्ट। ओके, 12th, 1 month. What your main goal to joining career, job placement? Job placement, hybrid, Delhi. Yes, right. What kind of great outcome? Skill development. Thank you for sharing your right feed. If you are plain, would you like to free resource get started? Oh, अच्छा, एक सेकेंड। थैंक्स फॉर पुनीत। बेस्ड ऑन व्हाट्सएयर में नॉट बी बेस्ट राइट फीट नाउ इफ़ यू प्लान टू चेंज। ऐसे क्यों कर रहा है? नहीं तो सही दिया सारी इन्फॉर्मेशन। न्यूज रिस्पॉन्ड, अच्छा। आई एम ए 12th प्लस शायद। ओके, गलत। हमें यहाँ से ये बुक वगैरह लगाना था क्योंकि हमने गलती लगा दिया था, सॉरी। यहाँ से पोस्ट करते हैं और ये टेस्ट वगैरह लेते हैं, यहाँ से लिसन करते हैं। पहले यहाँ पे हम चेंज करते हैं, हमने गलती लगा दिया, ईमेल का लगा दिया, सॉरी। इसको ये पेस्ट करते हैं, फिर अपडेट करते हैं। अब यहाँ से चेक करते हैं क्या हो रही है गलती। एक काम करते हैं हम इसमें, इसको वेरिएबल हटा देते हैं शॉर्ट में रखने के लिए क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जा रही है। और इसको भी हटा देते हैं, एज ए डेमो समझने के लिए रख लेते हैं। और स्टूडेंट कोर्स, लोकेशन, लर्निंग मोड, करियर गोल, इसको हमने हटा दिया, इसको हटा देते हैं। कोर्स है, लोकेशन है, लर्निंग मोड है, करियर गोल है शायद, यस है। स्टार्ट टाइमलाइन, इसको भी हटा देते हैं। एजुकेशन लेवल भी हटा देते हैं अभी के लिए। 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको नंबरिंग दे देते हैं क्योंकि हमारे पास यही जो मेन है डाटा, अभी के लिए टेस्टिंग के लिए ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सेव कर लेंगे और फंक्शन से भी हटा देंगे। टाइमलाइन हटा रहे हैं हम लोग, फ़ोन नंबर रहने देते हैं। सॉरी, फ़ोन नंबर के वजह से यहाँ ईमेल आईडी रहेगा, यहाँ पे हम ईमेल लिख देते हैं। नेम ठीक है। करियर गोल हमने रखा है लर्निंग मोड, एजुकेशन लेवल हटा दिया है, स्टूडेंट लोकेशन भी हटा दिया है, स्टूडेंट कोर्स, लर्निंग मोड, करियर इंटेंट शायद नहीं है। 1 2 3, लर्निंग मोड,
स्टूडेंट लोकेशन, ठीक है, इस पर अब करते हैं। अपडेट हो गया ये। यहाँ ये ऑप्शन हटा दिया हमने, इसको भी ऐड कर देते हैं, स्टूडेंट लोकेशन। स्टूडेंट लोकेशन और ईमेल लर्निंग मोड सही है। कभी कभी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसमें भी हो जाती है पंगा, तो इसको ध्यान रखना है। करियर गोल ठीक है, स्टूडेंट कोर्स ठीक है। अब इसको अपडेट करते हैं। अब यहाँ से टेस्ट करते हैं इसको लिसन करके। चलो, यस, do you have a minute to talk about? Why does so intense in development West Indies? Is that correct? Correct. ओके, अब ये क्वेश्चन पूछेगी, थोड़ा वहाँ जाएगा। करियर गोल से जॉब, स्किल ग्रोथ। वुड यू प्रेफर ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड? ऑनलाइन। देखा आ गया ना। जब भी इसने किया थैंक्स फॉर शेयरिंग, मे आई नो योर एजुकेशन लेवल प्लीज़, तो सॉरी, मे आई नो योर एजुकेशन लेवल, ये लेवल जैसे हमने जो भी क्वेश्चन सेट कर रखे थे ये यहाँ से फिक्स कर लिया और आ गया। और कुछ नहीं, बस इसको हमें गूगल शीट में ऐड कर देना है। तो यहाँ से हम गूगल शीट पे जाएंगे और यहाँ हमें जाना है अपेंड रो इन शीट, ठीक है। जैसे यहाँ देख सकते हो इसको ऐड किया है, बस वही कुछ ऐड करना है। वो गूगल शीट को ऐड करना होता है, यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट गूगल से साइनअप कर लो तो ऐड हो जाती है फिर। और मैं इसका वीडियो अटैच कर दूँगा कि गूगल शीट कैसे एनीटाइम में इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। कुछ नहीं, बहुत ईजी स्टेप होता है, इसको डायरेक्ट गूगल से साइनअप कर लो तो हो जाता है। ऐसे यहाँ क्रेडेंशियल करोगे तो क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट वो गूगल डेवलपर पे मिल जाती है, जाके ले सकते हो। कब तक से इसको क्लोज़ करते हैं। तो यहाँ से हमें सीट चूज़ करनी होगी, जैसे मैंने पहले से सीट बना रखा है तो इसी को दोबारा यूज़ कर लेते हैं हम। सीट 1 है, सॉरी सीट 2 है। तो जैसे एजुकेशन अपॉइंटमेंट का है मेरा, तो मैं वही ऐड कर लेता हूँ। आप चाहो तो पहले से इसको एक रो एंड कॉलम सीट एक बना लेना डमी सा। इसको चूज़ करते हैं, फिर इसको हम सीट 2, क्योंकि सीट 2 में जाना है, ये ऑटोमेटिक फिक्स करेगा। और यहाँ से हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। नेम पहले लेते हैं, यहाँ नेम मिल गया ना, नेम पुनीत है तो यहाँ नेम जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। फ़ोन नंबर, सॉरी इसमें फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ हमें ईमेल आईडी डालनी होगी। तो ईमेल आईडी जो थी यहाँ पे इसने डाल दी। एजुकेशन लेवल शायद ये एक्चुअली हमने अभी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है, तो वो भी सारे इसमें डाटा दिखा रहा है। तो आप इसमें अपने आप हिसाब से एडिट कर सकते हो कि आपको लर्निंग मोड रखना है कि नहीं ऑप्शन। तो मेरे वो थे, वो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो इसमें हमने स्टूडेंट का लोकेशन पूछा था, तो स्टूडेंट का लोकेशन मिल जाएगा। दिल्ली है तो यहाँ पे दिल्ली रख लेंगे। इंटरेस्टेड कोर्स जो भी है यहाँ पे आ, जैसे स्टूडेंट का कोर्स क्या डेवलपमेंट है तो यहाँ कोर्स में ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। और क्या क्वेश्चन था? स्टूडेंट कोर्स, स्टूडेंट लोकेशन, लर्निंग मोड, करियर गोल। लर्निंग मोड पहले आप सर्च करते हैं। लर्निंग मोड ऑनलाइन है तो ऑनलाइन कर देंगे। गोल क्या था? गोल को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, स्किल ग्रोथ। फिर यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे तो अब देखना ये डाटा आ गया होगा। आ गया ना, स्किल ग्रोथ ऑनलाइन दिल्ली डेवलपमेंट जो भी था हमने किया था, पुनीत कुमार ऐसे जो भी हमने मेल रखा था। ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हमने टेस्टिंग कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं ना,
जब टेस्ट हो जाती है ओवरफ्लो हम लोग चला लेते हैं तो प्रोडक्शन यूआरएल डाल देते हैं इसमें एक्टिव करने के बाद ओवरफ्लो को। यहाँ पे रिटेल आई में जाओगे, ये जाता तो प्रोडक्शन वाले में क्या होता है कि ये टेस्ट जो होती है हट जाती है, या इसको हटा दो तो प्रोडक्शन वाले में चल जाएगी जब हम इसको लाइव अप चलाने वाले एक्टिव। अब जो सेकेंड चीज़ है वो रह गई हमारी, और ये टेम्पलेट रह गई है, ठीक है। अब ईमेल कॉन्फर्मेशन वाली चीज़ें रह गई है, तो अब इसको हम बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ये बुक वायरल है, इसको ना डिलीट करते एक नया बुक लेते हैं क्योंकि वो हमारा कॉपी हो जाएगा। इसको पोस्ट करते हैं, सॉरी एक सेकंड देखते हैं, इसमें टेस्ट कर लेते हैं क्या है। सॉरी, इसमें पोस्ट मेथड ऐसे है, ठीक है मैं ऐसे ही करता हूँ। पोस्ट करते हैं और अभी के लिए इमीडिएटली रखते हैं, बाद में इसको रिस्पेंड टू वेब नोट कर लेंगे तभी ये फिक्स कर पाएगा। और ये जो टेस्ट वायरल इसको कॉपी करते हैं, जाते हैं एक नया फंक्शन ऐड करते हैं, कस्टम फंक्शन, ये जाके वायरल यहाँ पेस्ट कर देंगे। ये जो फंक्शन होने वाला है यहाँ चेक करते हैं, देखो दिखा रहा हूँ, ये होने वाला है अपार्टमेंट बुकिंग का, ठीक है। तो यही जस्ट ऐसे ही लिखना है अंडरस्कोर लगा के, तभी वो फिक्स करता है। वही सेम यहाँ पे पेस्ट करना होता है अपार्टमेंट बुकिंग के लिए। तो जैसे इसमें देख रहे हो, ट्रिगर व्हेन द कलेक्ट ऑल डिटेल्स ऑफ अपार्टमेंट, तो ये ऐसे डिटेल करेगा जब भी ट्रिगर, तो इसमें फिक्स करेगा और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे हम फॉर्म पे बनाएंगे कौन कौन सारी डिटेल चाहिए। तो जैसे इसमें हमने कौन कौन सारी डिटेल रखी है, इसमें चेक करो, नेम है, डेट है, टाइम है, ईमेल आईडी है। तो ये इसमें वेरिएबल हम बनाएंगे। पहले नेम है, नेम रखते हैं, स्टूडेंट का नेम, फिर ईमेल आईडी शायद कैपिटल था उसमें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन रख लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। ईमेल आईडी, थर्ड जो था टाइम एंड डेट, टाइम डेट, इसमें भी ये रख लेते हैं, टाइम डेट हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। फिर एरर आ गया, अच्छा ये नेम वाला बार बार एरर आ जा रहा है, ठीक है इसको ना फिर से डिलीट करके ऐड करते हैं, शायद सही हो जाए, कभी कभी ये होता है ऐसे। नेम, स्टूडेंट नेम, अच्छा फिर एरर आ गया, ठीक है नेम को हटाते हैं, हटाओ इसको यार, ओहो अब क्या गलत हो गया। टाइम, ईमेल आईडी, ठीक है सब कुछ। टाइम, डेट, नेम, क्या भाई सब कुछ ठीक है। देखा ऐसे एक दो बार ट्राई करोगे तो हो जाता है ये ऐसे ही होते रहता है। और इसके बाद हमने ऐसे लिए चैट रखता है ना कि वो बैलेंस भी नहीं कटता है अपना, और फिर अब यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। अब जो हमारा ये ओवरफ्लो है मेले वाला, वैसे ही इसको भी हम टेस्टिंग मोड पे लगाएंगे। अब इसको टेस्ट कर रहा, अब यहाँ से हम जो भी, तो अब इसको हम एजुकेशन लेवल बताएंगे 12th। यस, मैं ऑल्सो कैरियर गोल अलाइन टू स्किल बेस्ड ट्रेनिंग करेक्ट, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ लेने दो। मे आई ऑल्सो नो योर करियर गोल अलाइन विथ योर प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड ऑन ट्रेनिंग, करेक्ट। तो कंफर्म कर रहा है ईमेल, लेकिन ये मेरा ईमेल करेक्ट नहीं है, मैंने ऐसे डमी डाला है, तो मैं ईमेल करेक्ट डालता हूँ इसको, पुनीत कुमार 98355 @gmail.com। Could you please spell your email address letter by letter? That's correct. I want to make sure I have a right place. Please spell your email letter by letter. अच्छा इसका ना वॉइस मोड में करना चाहिए था, इसको फिर से कॉपी करके दे देते हैं, ठीक रहेगा। प्लीज़ टेल मी योर प्रेफर डेट एंड टाइम, ठीक है टाइम रखते हैं 28 नवंबर at 6 PM। अब देखा ये फिक्स कर लिया, तो जैसे योर मीटिंग शेड्यूल, थैंक यू फॉर कॉल, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। देखा अपने हम जो भी अपार्टमेंट वाला डिटेल रखा इसने एडिटर में फिक्स कर लिया, ऐसे सारी चीज़ें। अब इसको हम अगला बढ़ाने के लिए, जैसे अब एक्सेल सीट है तो एक्सेल सीट में ये अपार्टमेंट वाला सीट 1 है,
तो अब इसमें ऐड करने के लिए अब यहाँ से हम करेंगे आगे। बस ये नोट कैसे कनेक्ट करना है, तुम्हें अपना गूगल शीट ऐड करना है, और यहाँ से जब ऐड करोगे फ्रॉम लिस्ट, जैसे मेरा एजुकेशन अपॉइंटमेंट वाला है, ये एजुकेशन अपॉइंटमेंट वाला है, तो हम वही चूज़ करेंगे इसमें। फिर उसके बाद ये सीट 1 से लेनी है, तो 1 में क्योंकि अपॉइंटमेंट डिटेल वाली सारी चीज़ें हैं तो 1 में फिक्स कर लेगा ऑटोमेटिक। तो जैसे ये पहले से ग्रीन है क्योंकि मैंने इसमें कर रखा है, तो तुम्हें को नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ से नेम सर्च करना है और ये नेम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, तो ये ले लेगा प्रेफर डेट टाइम ऐसे करके, और यहाँ से एग्जीक्यूट करना है। अब देखो 28 नवंबर को हमने बुक किया था 6 PM, पुनीत कुमार जो भी नेम है। अब यहाँ ऐड देखो पुनीत कुमार 28 नवंबर 6 बजे आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये नोट है जो कि पर्सनलाइज मेल सेंड करने के लिए हमने AI एजेंट का नोट रखा है। इसमें गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हो जो कि फ्री मोबाइल है, API की है, तुम जाके गूगल स्टूडियो पे ले सकते हो, गूगल स्टूडियो पे API की, यहाँ API की मिल जाती हैं जेमिनी की, यहाँ से क्रिएट करके यहाँ पेस्ट कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर सकते हो API की, फिर ये कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें ये पढ़ने की ज़रूरत है कि जैसे पढ़ के समझ सकते हो कि वह AI ईमेल असिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग वेल फॉर्मेटेड फ्लाइट बिजनेस फॉलोअप ईमेल, जो कि उसको मेंशन करना है नेम टाइम प्रेफर डेट। फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ से, ये एक ईमेल बनाएगा उसके लिए से हाय पुनीत थैंक यू फॉर टेकिंग। अब देखना मेल आएगी मेरे को। अब ये कोड नोट इसलिए लगा रखा है ना, ईमेल को अच्छे फॉर्मेट में लाता है। ये जावास्क्रिप्ट हमने लिख रखा है, नेम को एक फॉर्मेटेड ईमेल के फॉर्मेट में लाता है। इसको हम ऐसे क्लिक करेंगे तो अब ये लाएगा, सब्जेक्ट को अलग कर देगा और बॉडी को अलग कर देगा। अब यहाँ जो मेन है, इसमें आप भी जीमेल अकाउंट अपना जोड़ सकते हो। जीमेल अकाउंट जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, ऐड न्यू क्रेडेंशियल यहाँ पे जाके, और क्लाइंट आईडी क्लाइंट सीक्रेट ऐड करना है। तुम्हें मैं एक वीडियो अटैच कर दूंगा, तुम जाके कर सकते हो। और देखो किसको भेजना है, तो जो ईमेल आईडी आई थी ना अभी, ईमेल आईडी, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसमें, जो भी ईमेल डालेगा उसको भेज चली जाएगी ऐसे। और एक सब्जेक्ट हमने एक कस्टम डाल रखा है, और यहाँ से सारे सब्जेक्ट तुम ले भी सकते हो, और सब्जेक्ट कस्टम डाल दो। और ईमेल में टेक्स्ट टाइप रहेगा, HTML नहीं रखना है, और मैसेज जो है इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है तो चला जाएगा। और इसको करने से क्या होता है कि वहाँ ईमेल जब जाती है तो वहाँ लिख देता है कि दिस मेल सेट ऑटोमेटिक बाई N10, तो इसको हम ऑफ करेंगे क्योंकि वहाँ शो नहीं करना है। एक ऑप्शन और भी होती है कि BCC में लगा सकते हो अपना मेल, चाहो तो तुम क्या खुद का कोई एक कनेक्शन रखना चाहते हो कोई और भी सेकेंडरी प्राइमरी मेल का, तो तुम ऐड कर सकते हो। कुछ नहीं, एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमको मेल आ चुकी होगी, चेक करते हैं, आ गई ना मेल। टाइम देखो, योर काउंसलिंग बुक हाय पुनीत 28 नवंबर को 6 PM को बुक हुई है, और ये लिंक और नंबर के साथ मेरे को सेंड कर दिया है। बस अब यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, हो जाएगा। एक चीज़ सेटिंग करनी है यहाँ पे, हमें ऐसे यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबबुक नोट कर देना है। अब ये सेव कर देना है, हमारी वर्कफ्लो बन चुकी है, बस डन हो गया हमारा काम। और यहाँ से तुम्हें पब्लिश करना होगा, लिख दो एजुकेशन वॉइस एजेंट डमी, मैंने अपने लिए कर दिया पब्लिश। यहाँ से आउटबाउंड और इनबाउंड नंबर भी कर सकते हो, जैसे नंबर मेरे पास है, पब्लिश हो गया नंबर। अब होम पे जाते हैं, ये वॉइस एजेंट तुमको मिल चुका है। फ़ोन नंबर में जाके यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर का एसोसिएट ट्रेन के चलते हैं, और ये ट्विलो से नंबर कनेक्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और बैच कॉल ऐसे होती है, जब भी हम क्रिएट बैच कॉल करते हैं यहाँ पे एक CSV फाइल रखते हैं, जो कि एक रो में एक नेम होती है, इंटरेस्टेड कोर्स होगी जो कि उसको पर्सनलाइज मेल सेंड करेगा, सॉरी कॉल जाएगी। बस डन है। और जो भी जितनी सारे प्रॉम्प्ट ओवरफ्लो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तुम चाहो तो ले सकते हो।